Good morning, dear students. As yesterday we have studied the classification of haloalkanes and haloarenes. So today we will discuss about the nomenclature of haloalkanes and haloarenes. In the class 11 we have studied IUPAC system in detail. So here we are to talk about the common names of different structural formulas and IUPAC names of these particular structural formulas. So in brief we are to study the IUPAC system of haloalkanes and haloarenes here. So what we are to remember while writing the IUPAC name, first see that first we are to write down the prefix, then word root, and afterward we are to write down the suffix. So what is prefix here? So if you have revised class 11th IUPAC system, so you must have noticed a list. हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया हुआ था जहां पे हमने पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स के प्रीफिक्सेस और सफिक्स मेंशन किए थे एंड आई हैड टोल्ड यू कि हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, कब हमें किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को एज अ सफिक्स लेना है, कब प्रीफिक्स लेना है. तो यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड कि हेलोजन ग्रुप को हमेशा एज अ प्रीफिक्स लिखा जाता है. सो इन प्रीफिक्स हियर वी आर टू राइट डाउन द हेलोजन ग्रुप. इन वर्ड रूट में आपको क्या लिखना होता है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर. तो हमारे वर्ड रूट क्या होते हैं, मीथ फॉर 1 कार्बन, ईथ फॉर 2 कार्बन, प्रोप फॉर 3 कार्बन एंड सो ऑन. So and in suffix what we are to write down here, because the parent is either the alkene or alkynes means hydrocarbons. तो आपको क्या करना है, आपको suffix में mention ये करना है कि whether it is alkene or alkyne. So now let's start with some examples. The first example I have taken is having the chain of 3 carbon atoms having one Br group. Bromo group is there, bromide is there. So अगर हम common name इसका लिखना चाहते हैं, simply हम इसको क्या बुलाएंगे, propyl है ये, so that would be propyl bromide. And because it is having a straight chain, जो हमने क्लास 11 में डिस्कस किया है कि N क्या होता है, देयर आफ्टर सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, यानी आइसो क्या होता है, ठीक है. सो ऑन द बेसिस वी कैन राइट इट एज N propyl bromide. Okay, so that would be N propyl bromide. That would be the common name. It is having the straight chain. That's why we have written N here. We are again revising it that we have studied in class 11. IUPAC system हम देखेंगे तो इसको follow करेंगे. In prefix we are to write down the halogen group, that is Br here. So that would be bromo. Thereafter word root में हमारे पास 3 कार्बन एटम है यानी प्रोप है. So you are to write down prop. Thereafter suffix, that is a alkane. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, no double bond, no triple bond is there. This is the alkane derivative. So we will write down bromopropane. That would be the IUPAC name of the compound. Now let's see the next one. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको कॉमन नेम देते हैं तो दैट इज वेदर नोन एज द आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और यू मे ऑल्सो से एज सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड. देखिए इसको आइसो भी कह सकते हैं, इसको सेकेंडरी भी कह सकते हैं. कल हम लोगों ने बात की थी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम के रिगार्डिंग. तो प्राइमरी कार्बन एटम मैंने आपको क्या बताया था कि आपका ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है that must be linked with 1 carbon, then it is primary. यानी ये हमारा 1 डिग्री है. Okay, and when the alpha carbon atom, you must have remembered that alpha carbon atom यानी वो कार्बन एटम जिससे ग्रुप जुड़ा है, it must be linked to 2 different carbon atom. यानी इसको 2 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए. तो ये कार्बन एटम यानी हमारा अल्फा कार्बन एटम कैसा हो गया, यहाँ पर सेकेंडरी हो गया, इसलिए इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं. इसके अलावा इसको आइसो भी कहा जाता है. आइसो के लिए अभी जस्ट मैं आपको नेक्स्ट पे बात करूंगी. सो दैट इज हैविंग आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड और सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड. नाउ लेट्स सी द आईयूपीएसी नेम. आईयूपीएसी नेम के लिए हमें क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी होती है एंड वी आर टू गिव द लेस नंबर टू द ग्रुप. सो अगर मैं इसको यहां से नंबरिंग करूं देन 1 2 3, अगर मैं इधर से भी नंबरिंग करती हूं तो भी 1 2 3. सो the way would be similar in both the cases.
So what would be the IUPAC name? That would be 2-bromo and then propane. So first we have to write down the prefix with its place. यहाँ पर हमने 1-bromo propane भी लिख सकते थे, लेकिन 1 है तो उसको हम लीव भी कर सकते हैं. So 2-bromo prop would be the word root and ane would be the suffix. Now let's see the next one. यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? 4 कार्बन हमने लिए एंड इसमें किसी एक कार्बन पर Br ग्रुप जुड़ा हुआ है. लेट्स सी, नाम हमने क्या मेंशन किया? अगेन सी द अल्फा कार्बन एटम. अल्फा कार्बन एटम कौन सा है? ये वाला अल्फा कार्बन एटम है जिससे कि ग्रुप जुड़ा है. नाउ लेट्स सी, ये 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है. तो इफ इट इज अटैच्ड और लिंक्ड टू 2 कार्बन एटम्स डायरेक्टली, इट मस्ट बी सेकेंडरी इन नेचर. सो दैट वुड बी सेकेंडरी. अब कार्बन 4 है तो हम क्या यूज करेंगे? ब्यूटाइल ब्रोमाइड. सो दैट वुड बी सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. नाउ आई में आस्क, क्या इसको हम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं? क्योंकि बेसिकली आइसो के पीछे कंसेप्ट क्या होता है कि सेकंड पोजीशन पे ग्रुप होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेकंड पोजीशन पे Br था, इसलिए मैंने इसको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कहा. यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पर है तो इसको भी मैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कह सकती हूँ क्या? नो, इट इज नॉट सो. व्हाई? क्योंकि हमारा जो सेकेंड पोजीशन पर होना चाहिए दैट मस्ट बी द मिथाइल ग्रुप, नॉट एनी अदर ग्रुप. नाउ लेट्स सी, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, बट हियर इन द केस अगर हमें आइसो बनाना है तो आइसो 3 कार्बन एटम्स आर देयर. अगर मैं इसको इस तरीके से ना लिखकर यहाँ Br लिख देती और ये CH3 लिख देती, तब भी आप जब नंबर देते तो 1 2 3 नंबर देते इसको. सो दैट यू आर टू रिमेम्बर कि केवल और केवल 3 कार्बन एटम वाले केस में अगर सेकंड पोजीशन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आता है तब उसको आइसो कहा जाता है. इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज, क्योंकि उसकी सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ ही नहीं सकता है, बिकॉज दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द चेन. ठीक है, आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट दैट. 11th में भी बता चुकी हूँ आपको पहले. सो अगर Br की जगह OH होता तो मैं उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल देती. ठीक है, लेकिन यही अगर यहाँ पर OH होता 4 कार्बन वाली चेन में तो उसको हम आइसो नहीं बोलेंगे, दैट वुड बी सेकेंडरी वन. आइसो कब बोलेंगे? आइसो तब बोलेंगे जब इस जगह पर मिथाइल हो, यानी जो मेरा अल्फा कार्बन एटम है इस केस में सेकेंडरी दिखाई दे रहा है, लेकिन आइसो वाले केस में नेक्स्ट आ रहा है, इसके नीचे देखिए, आइसो वाले केस में आपका अल्फा कार्बन एटम वुड बी प्राइमरी. इज इट ओके? यहां पर देखिए अल्फा कार्बन एटम यही है ना मेरा जिससे ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये अगले 2 मेंबर्स से जुड़ा हुआ है, अगले 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज सेकेंडरी. लेकिन इस केस में मेरा अल्फा कार्बन एटम ये नहीं है, अल्फा कार्बन एटम ये है और ये क्या है? प्राइमरी है. सो दैट वुड बी आइसोब्यूटाइल क्लोराइड. I think now the difference would be understood to all. So अब इसके IUPAC नेम पर आते हैं. तो IUPAC नेम पर हमें क्या ध्यान रखना है? We have to choose the longest chain. तो 4 कार्बन की चेन है. We have to give the lowest number to the group. तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4, that would be the wrong way. So I am to number it like 1 2 3 4. तो इसको मुझे 2 नंबर देना है. So it would be 2-bromobutane. तो जो प्रॉपर वे होगा वो ये होगा और इसका IUPAC नेम होगा 2-bromobutane. Now let's see this one. अब यहाँ पर भी मुझे लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे 1 2 3, whether it is so 1 2 3 और 1 2 3, यानी हर तरीके से हमारी लॉन्गेस्ट चेन क्या आ रही है? 3 कार्बन की आ रही है. ठीक है, सो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है. अब मुझे नंबरिंग किस साइड से करनी चाहिए? जिस साइड से मैंने कहा आपसे ग्रुप आता है. अब अगर मैं इधर से नंबर देती हूँ तो 1 2 3, ओके, यानी सेकंड पोजीशन पर एक ग्रुप आ रहा है और थर्ड पोजीशन पर दूसरा, यानी साइड चेन आ रही है सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे Cl ग्रुप आ रहा है. लेकिन अगर मैं यहां से नंबर देती हूँ तो 1 2 3, तो लोएस्ट नंबर हमें किधर से मिल रहा है? लोएस्ट सम रूल किधर से फॉलो हो रहा है? फ्रॉम दिस साइड. सो इट वुड बी 1 2 3. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड वुड बी, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड वुड बी 1 क्लोरो. क्लोरो को हमने पहले क्यों लिखा? इसलिए नहीं कि वो 1 नंबर पे है, इसलिए क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M और C में C पहले आता है.
So we have to follow the alphabetical order also. So 1-chloro-2-methyl-propane would be the IUPAC name. Now let's see the next one. यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इसका कॉमन नेम लेना है मुझे. That would be the alpha carbon atom here, क्योंकि Cl इससे जुड़ा हुआ है. ओके, सो अगर हमारा अल्फा कार्बन एटम 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी. नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, 1 2 3 4, इट मींस ब्यूट, सो दैट वुड बी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. एंड व्हाट अबाउट द आईयूपीएसी नेम? आईयूपीएसी नेम जब हम लेंगे तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, चाहे मैं 1 2 3 नंबर करूं, चाहे मैं 1 2 3 नंबर करूं. अगर इधर से करती हूं तो 1 2 3 नंबर करूं, तो हर तरीके से सेकंड पोजीशन पे मेरा Cl आता है. तो इट्स आईयूपीएसी नेम मैं ऐसे कर देती हूँ 1 2 एंड 3. तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 क्लोरो, 2 पोजीशन पे मिथाइल भी है तो अलग अलग आपको बार बार लिखना होता है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. नाउ सी द नेक्स्ट वन. ये हमने क्या लिया, जैसा कि हमने पढ़ा है आप 11th क्लास में, तो प्राइमरी कार्बन एटम होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, इसी तरीके से क्वाटरनरी भी होता है. लेकिन जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा तो वहां पर टर्शरी तक पढ़ा था केवल हेलो एल्केन को, वहां क्वाटरनरी नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वाटरनरी नहीं होता. क्वाटरनरी कार्बन एटम कौन सा है, क्वाटरनरी कार्बन एटम ये है. क्वाटरनरी कार्बन एटम वो होता है जो अपने चारों तरफ से यानी चारों वैलेंसी से कार्बन से जुड़ा हुआ हो. लेकिन हम तो बेटा क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन का पढ़ रहे थे, तो हेलो एल्केन के केस में अगर मैं अल्फा कार्बन की बात करूंगी तो अल्फा कार्बन ये होगा, और ये तो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, मींस इट इज प्राइमरी. दैट वुड बी 1 डिग्री हेलो एल्केन. ये कार्बन क्वाटरनरी रहेगा, दिस कार्बन वुड बी 4 डिग्री, बट दिस कार्बन वुड बी 1 डिग्री. और मेरा कंपाउंड क्या है, हेलो एल्केन, तो दैट वुड बी 1 डिग्री. सो जब हम इसका कॉमन नेम लेते हैं तो दैट वुड बी क्वाटरनरी जो स्टेज होती है उसको हम नियो से बुलाते हैं, तो दैट वुड बी नियो पेंटाइल क्लोराइड. 5 कार्बन आर देयर, 1 2 3 4 5, सो दैट वुड बी नियो पेंटाइल क्लोराइड. और 5 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, अमाइल भी कहते हैं, तो दैट वुड बी नियो अमाइल क्लोराइड. और इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम देखते हैं तो क्या आता है हमारा, दैट वुड बी 1 क्लोरो, देन सेकेंड पोजीशन इसको देंगे, फर्स्ट इसको, सेकेंड इसको, थर्ड इसको. सो 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल. सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो दोनों की पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. ये हमने क्या लिया है, ध्यान दीजिए इस पर, CH3C, इस वाले कार्बन पर 2 Cl है. अगर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप्स होते हैं तो हम उसको जेमिनल कहते हैं, यानी जेम डाइहेलाइड कहते हैं. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ जेम डाइहेलाइड. और कल मैंने जनरल नेम में आपको बताया था, उस केस में क्या लेते हैं, डीन वर्ड का यूज करते हैं. सो दैट इज, देखिए 1 2 3 कार्बन यानी प्रोपाइल आता है हमारा कॉमन नेम अगर हम लेना चाहें तो, क्योंकि डीन का यूज किया जाता है तो प्रोपाइलिडीन. नाउ इट मस्ट बी क्लोराइड नॉट ब्रोमाइड. सो दैट इज, अब आइसो सेकेंड पोजीशन पे क्योंकि ये दोनों ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए आइसो प्रोपाइलिडीन क्लोराइड इसका कॉमन नेम रहेगा. आईयूपीएसी नेम जब आप लेते हैं तो चाहे इधर से नंबर दीजिए चाहे इधर से, सेकेंड पोजीशन पर ही आएंगे. सो दैट वुड बी 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. यहाँ पर हम देख रहे हैं Cl ग्रुप भी है, Br ग्रुप भी है और I ग्रुप भी है, एंड वी आर हैविंग 4 कार्बन एटम्स. ठीक है. सो जब बहुत लॉन्ग चेन आ जाती है, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं, तो वहां पर एक कॉमन नेम नहीं लेते, फिर आईयूपीएसी सिस्टम को ही हम देखते हैं. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियसली 4 कार्बन एटम की है. व्हाट वी आर टू रिमेंबर नाउ, देन वी आर टू गिव द पोजीशन. अब मुझे ध्यान देना है कि मुझे पोजीशन किस तरफ से देनी है. देखिए चाहे मैं यहां से पोजीशन देती हूँ 1, चाहे यहां से, दोनों ही तरफ से मेरी 1 पोजीशन आ रही है एक ग्रुप को. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. जब मैं नंबरिंग यहां से करूंगी 1 2 3 4, तो आई को, आयोडो ग्रुप को थर्ड पोजीशन मिल रही है. अगर मैं यहां से नंबर करती हूँ 1 2 3 4, तो देखिए आयोडो ग्रुप को सेकेंड पोजीशन मिल रही है. तब हमें रूल कौन सा देखना है, लोएस्ट सम रूल. नाउ लेट्स सी, सम करते हैं हम. एक ग्रुप है हमारा 1 पोजीशन पे, एक ग्रुप है हमारा 3 पे, एक है हमारा 4 पे.
इट मीन्स सम आ रहा है 8 अगर मैं ऐसे नंबरिंग करती हूँ, और अगर मैं ऐसे नंबरिंग करती हूँ तो आ रहा है मेरा टोटल 1 + 2 3 and then 4 7. It means the correct way of numbering is this one 1 2 3 4. Now हमें नेम कैसे लेना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. सो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, सो वील टेक 4 ब्रोमो, देयर आफ्टर सी बाद उसके बाद आता है, सो 1 क्लोरो, एंड लास्ट में कौन आएगा? आयोडो. 2 आयोडो. कितने कार्बन की चेन है? दैट इज द चेन ऑफ 1 2 3 4 ब्यूटेन. सो दैट वुड बी not propane, that would be butane. So like this you are to name the different haloalkane compounds. Now let's see a bit of idea of haloarenes also. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं haloarenes के केस में देखिए कुछ 4 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं. Let's see this one. अगर मुझे इसका नाम लेना है तो ये किसका डेरिवेटिव है? बेंजीन का डेरिवेटिव है. ठीक है. अब अगर एक मेरा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक मेरा क्या है? हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है. उस टेबल में हमने क्या देखा था? हेलोजन पहले आता है और एल्काइल ग्रुप बाद में आता है. ठीक है. तो इसको हम पहला नंबर देंगे. वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1, देयर आफ्टर 2, देयर आफ्टर 3 4 5 और 6. अब मेरा क्योंकि 1 और 2 पर ही ग्रुप है तो अकॉर्डिंगली मैं नाम यहां पर क्या लूंगी? 1 क्लोरो 2 मिथाइल और किसका डेरिवेटिव है? बेंजीन. सो आइदर आई मे नेम लाइक 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और हमें पता है कि जब ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पे कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको ऑर्थो बोलते हैं, तो दैट वुड बी ऑर्थो क्लोरो, और इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? टॉलिन. यू नो दैट कि जब रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप होता है तो उसको टॉलिन कहा जाता है. सो दैट वुड बी ऑर्थो क्लोरोटॉलिन. जब उसके पैरेलल होता है तो पैरा क्लोरोटॉलिन, और जब ऑल्टरनेट होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? मेटा. सो दैट वुड बी पैरा, दैट वुड बी मेटा, एंड दैट वुड बी ऑर्थो क्लोरोटॉलिन. तो इस तरीके से भी नाम दिया जा सकता है, ऑर्थो क्लोरोटॉलिन. सिमिलरली इट वुड बी पैरा क्लोरोटॉलिन, it would be metachlorotoluene. The another name that we can give is 1 यहाँ पर बोलेंगे 2 3 4. So that would be 1 chloro 4 methyl benzene. For this 1 2 3. So that would be 1 chloro 3 methyl benzene. Now let's see this. कल भी मैंने आपको बताया था क्या है ये? बेंजाइल क्लोराइड. This is बेंजाइल क्लोराइड. 3 चीजें ली थी मैंने आपका साइड चेन में जब क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे. तो एरोमेटिक के केस में हमने न्यूक्लियर और साइड चेन पढ़ा था. तो साइड चेन के केस में जब हमने IUPAC नेम लिया था तो मैंने आपसे क्या कहा था? क्योंकि ग्रुप मेरा कहां पर है? साइड चेन में, तो ये हमारा रहेगा मेन यानी रूट वर्ड. अब रूट वर्ड हमारा बेंजीन नहीं, सॉरी, जो हमारा सफिक्स रहेगा वो हमारा बेंजीन नहीं रहेगा. सफिक्स हमारा कौन रहेगा यहाँ पर? एल्केन रहेगा यानी मीथेन रहेगा. तो दैट वुड बी 1 क्लोरो, एंड सो यू हैव टू नेम इट लाइक दिस. तो इसका नाम आप कैसे देंगे? नंबरिंग इसको करेंगे तो ये 1 पोजीशन पर आएगी. 1 ही पोजीशन पे हमारी फिनाइल रिंग है. बेंजीन नहीं बोलेंगे, इसको फिनाइल बोलेंगे. तो दैट वुड बी 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन. That would be the methane derivative. Now, dear students, take the screenshot of the board and make notes accordingly. इसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए और ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लेके IUPAC नेम लिखने की कोशिश कीजिए. NCERT में जो भी क्वेश्चन IUPAC नेम्स पर दे रखे हैं that you are to do, whether it is to convert the structural formula to the IUPAC name और IUPAC नेम से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना हो, वो भी आप प्रैक्टिस करके देखेंगे. थैंक यू.